Hello everyone, myself Satish Kalra welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra. And dear students, today we are doing chemical properties of group 15 elements, that is nitrogen family of chapter 7 P block elements of class plus 2. So आज हम लेके आए बेटा chemical properties में हमारा फर्स्ट टॉपिक है reactivity with oxygen. We know in the group 15 there are total 5 elements: nitrogen, phosphorus, As arsenic, Sb antimony, Bi bismuth. Whenever they will react with oxygen, then what type of compound they form? All the elements of this group on reaction with oxygen O2 will form different oxides. Particularly क्या बनाएंगे? Trioxides and pentoxides having formula E2O3 and E2O5 respectively. E2O3, this is trioxide category. E2O5, this is pentoxide category. In E2O3 category, the oxidation number of element is +3, and E2O5 category, the oxidation number of element is +5, and E can be nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony. बिस्मिथ के केस में कम चांसेस हैं, जैसे आप एग्जांपल देखिए P2O3, P2O5, As2O3. However, नाइट्रोजन फॉर्म्स ए नंबर ऑफ ऑक्साइड्स कि वो सिर्फ ट्राइऑक्साइड और पेंटॉक्साइड नहीं बनाता, बहुत सारे ऑक्साइड बनाता है, एंड शोज ऑक्सीडेशन नंबर फ्रॉम +1 to +5. जैसे आप देखिए N2 है, N2 में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन क्या है? +1. NO में +3 है, +2 है, N2O3 में +3, N2O4 में +4, N2O5 में +5. So this is reactivity with oxygen. Next is reactivity with halogens. All the elements of this group on reaction with halogen will form two type of halides. One is trihalide, formula क्या है? EH3. Second है pentahalide, formula क्या है? EH5. E जो है this is any element of group 15 and H is any halogen, fluorine, chlorine, bromine, iodine. For example, EH3 में एग्जाम्पल हमने लिया NF3 एंड EH5 में क्या एग्जाम्पल ले लिया? PCl5. अब साथ साथ एक बात और ध्यान रखनी है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ E in EH3 is +3 and oxidation of E in pentahalide is +5. Now, two type of halides, trihalide, pentahalides. So first of all, trihalides. Trihalides have similar structures just like that of ammonia. जैसे अमोनिया की अपने स्ट्रक्चर पड़ी थी, N सेंटर में है, 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, and nitrogen atom is having 1 lone pair of electrons. So halides of group 15 उनकी सेम स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर जो है हमारे पास किसकी है? ट्राइहैलाइड्स की. EH3 सेंटर एलिमेंट is attached with the 3 halogen. It is having 1 lone pair of electron. It is having the sp3 hybridization. Central atom की hybridization sp3 है, and due to the presence of 3 bond pair and 1 lone pair, the shape is pyramidal. This is the structure of trihalide. Now the properties of trihalides. ट्राइहैलाइड्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? फर्स्ट इज ट्राइहैलाइड्स आर जनरली कोवलेंट इन नेचर एंड देयर आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द रोड. नॉर्मली कैसे हैं? कोवलेंट है, और जब ग्रुप में नीचे जाएंगे तो इनका आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा. ट्राइहैलाइड ऑफ नाइट्रोजन आर लीस्ट स्टेबल, हाउएवर NF3 इज स्टेबल एंड NCl3 इज एक्सप्लोसिव. नॉर्मली क्या है? लीस्ट स्टेबल है हमारे पास. नेक्स्ट, द डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 is less than that of NH3. ये NF3 है, NF3, और ये क्वेश्चन आप +1 में पढ़ भी चुके हो. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NH3 एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NF3. +1 में क्वेश्चन भी है, although fluorine is having higher electron than hydrogen, yet the dipole moment of NF3 is lower than that of NH3. इसका रीजन आपने वहां देखा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रोनेटिक ज्यादा किसकी है? नाइट्रोजन की. तो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? नाइट्रोजन की तरफ. और लॉन पेयर की डाइपोल हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन है. जबकि NF3 के अंदर क्या है? नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से इलेक्ट्रोनेटिक ज्यादा किसकी है? फ्लोरीन की. तो शेड पेयर किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? फ्लोरीन की तरफ. और लॉन पेयर की डेवलपमेंट अपवर्ड डायरेक्शन है. So whenever you compare these two structures,
then in case of NH3 all the dipole moments are in only one direction, while in case of NF3 three dipole moments are in one direction and one dipole moment is in opposite direction. So net dipole moment की वैल्यूज क्या है, that will be more in case of NH3 than that of NF3, क्योंकि यहाँ कैंसिलेशन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो जिसकी नेट dipole moment ज़्यादा होगी that will be more polar. इसी वजह से NH3 जो है this is more polar than NF3. Next is reaction with water. अब जो ट्राई हैलाइड्स हैं, the ट्राई हैलाइड्स when react with water they will form different products depending upon the elements. अब एलिमेंट्स 5 हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ. जब इन सब के ट्राइहैलाइड वाटर से रिएक्शन करेंगे देन दे विल फॉर्म डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड द प्रोडक्ट्स विल डिपेंड अपॉन द एलिमेंट. प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करेगा, एलिमेंट के ऊपर. जैसे एग्जांपल देखिए NCl3 है, पहले उसने वाटर से रिएक्शन किया तो 3 वाटर मॉलिक्यूल मिलेंगे. वाटर में टोटल क्या हो गया, 6 हाइड्रोजन, इनमें से हमारे पास 3 हाइड्रोजन जो हैं वो जाएंगे N के पास, ये NH3 बना देगा, और जो 3 OH पार्ट है वो 3 Cl साथ मिलकर 3 HOCl. ऐसे PCl3 और ASCl3 इनमें सेम रिएक्शन होगी, यहाँ 3 वाटर होंगे. हम जानते हैं 1 वाटर में 1 H और 1 OH है, तो 3 वाटर में 3 H और 3 OH है. यहाँ 3 OH पार्ट जो हैं इन फास्फोरस या AS के पास जाएंगे, ये बनाएंगे H3PO3 या H3ASO3, और जो 3 H पार्ट बच जाएंगे वाटर में वो 3 Cl के पास जाएंगे, दे विल फॉर्म 3 HCl. नेक्स्ट ऐसे हमारे पास अगला है हमारे पास SbCl3 और BiCl3. दे विल रिएक्ट विद ओनली 1 वाटर मॉलिक्यूल. इस वाटर मॉलिक्यूल में से 1 ऑक्सीजन पार्ट इस Sb और HCl के पास जाएगा, ये बनाएगा SbOCl या BiOCl. अब बचा क्या है हमारे पास, 2 हाइड्रोजन बचे हैं और 2 ही क्लोरीन, दे विल फॉर्म 2 HCl. सो आप देख रहे हैं NCl3 के केस में अमोनिया बना है, PCl3 और ASCl3 के केस में H3PO3 या H3ASO3 बना है, और SbCl3 और BiCl3 के केस में SbOCl या BiOCl बना है. सो द रिएक्शन विद वाटर, द ट्राइहैलाइड व्हेन रिएक्ट विद वाटर दे विल फॉर्म डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिपेंडिंग अपॉन द एलिमेंट्स कि वो किस एलिमेंट का ट्राइहैलाइड है. नेक्स्ट इज there is one important question. The trihalide of phosphorus, arsenic and antimony act as Lewis acids. अब बताते हैं कि आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस जो हैं इनके ट्राइहैलाइड जो हैं दे एक्ट एज लेविस एसिड. जबकि आपने स्ट्रक्चर में देखा कि सेंट्रल एलिमेंट के पास 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और आपने पढ़ा भी है लेविस बेस और लेविस एसिड के बारे में. लेविस बेस क्या होते हैं, विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर. तो इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रहा है यानी कि उनके अंदर डोनेट करने की टेंडेंसी होनी चाहिए, और डोनेट करने वाला वो कैसे एक्ट करने चाहिए, दे मस्ट एक्ट एज द लेविस बेस. बट दिस इज द क्वेश्चन दैट द ट्राइहैलाइड ऑफ फास्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी एक्ट एज लेविस एसिड. अब ये लेविस एसिड क्या है, क्यों है, हम जानते हैं लेविस एसिड होते क्या हैं, दोज कंपाउंड्स और आयंस विच हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर. अब देखते हैं ऐसा क्यों कि लोन पेयर है और ये डोनेट करने की बजाय यहाँ एक्सेप्ट करने की बात आ रही है. It is due to the presence of vacant d atomic orbitals in case of phosphorus, arsenic and antimony. That's why they can accept electron pairs. अब इनके पास क्या है, vacant d atomic orbital है, और उन vacant d atomic orbital में they can accept electron pair, और यदि electron pair accept कर सकते हैं then they will behave as the Lewis acid. एग्जाम्पल देखिए, जैसे SbF3 है, 2F नेगेटिव को रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पर 2F नेगेटिव में फ्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये उसे एक्सेप्ट करेगा एंड इट विल फॉर्म SbF5 -2. सो इन दिस केस इट इज एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट्स व्हाई इट एक्ट एज द लेविस एसिड. तो ये कैसे एक्ट कर रहा है यहाँ, लेविस एसिड के रूप में. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइहैलाइड. नेक्स्ट इज पेंटैलाइड्स कैटेगरी. पेंटैलाइड्स में बहुत ही कॉमन एग्जांपल है PCl5 +1 में आप पढ़ चुके हो. सेंटर फास्फोरस एटम इज अटैच्ड विद 3 क्लोरीन एटम बाय कोवलेंट बॉन्ड and 2 also by covalent bond. But in this case, in the case of PCl5, 3 PCl bond. This is 1, 2, this is 3. These 3 PCl bonds they lie in one plane. वो क्या है, एक प्लेन में लाई कर रहे हैं. एक मिनट में यहाँ सही कर देता हूँ. जो मैंने डार्क किए हैं, this one, this one, this one. These 3 PCl bonds lie in one plane and these are
at an angle of 120 degree to each other, and these three PCl bonds are called, these three PCl bonds are 3 PCl equatorial bonds, and the bond angle is 120 degree. इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना है? 120 डिग्री है. while two PCl bonds, ये जो मैं दिखाने जा रहा हूँ अब, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, these two PCl bonds, one is lying above the plane, second is lying below the plane, and they are perpendicular to the plane of equatorial bonds. इन बॉन्ड्स को हम बोलते क्या हैं? these two PCl bonds are called axial bonds. इन्हें क्या बोला जाता है? axial bonds हैं. और इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना है? 90 डिग्री. इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना है? 90 डिग्री है. And this geometry is called trigonal bipyramidal, and the hybridization of central atom is sp3d. So देखिएगा आप, PCl5 में 3 PCl equatorial bonds, 2 PCl axial bonds स्ट्रक्चर आपको दिखाएंगे. अब हाइब्रिडेशन दिखाते हैं. जैसे फास्फोरस है एटॉमिक नंबर 15, और फिर रेशियो क्या होगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3. सो 3s सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल था. 3p में 3 है, यहाँ 3d वेकेंट है. सो इन एक्साइटेड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट लिखा है. इन एक्साइटेड स्टेट क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम 3s टू 3d. सो 3s वालों में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करा है, कहाँ पहुँच चुका है? 3d में. आफ्टर दैट हाइब्रिडेशन होगी. हाइब्रिडेशन में क्या होगा? आउटर मोस्ट शेल का ये 3s एटॉमिक ऑर्बिटल, 3p वाले तीनों और 3d वाला एक, ये 5 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं. दिस 5 एटॉमिक ऑर्बिटल विल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडेशन, एंड द हाइब्रिडेशन इज sp3d. और इस तरह से ये जो 5 हैं, दिस 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म. और जो ये 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे किसके? फास्फोरस के. दे विल ओवरलैप विद द 3pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ 5 क्लोरीन एटम, जो ये दिखा रखे हैं. दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन. सो इस तरह से हमारे पास PCl बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होगी. द PCl बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ, ये जो ऊपर दिख रहे हैं, दीज आर द sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ फास्फोरस. और क्लोरीन के क्या दिख रहे हैं? 3pz एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन. सो आप बताएंगे द PCl bonds are formed by the overlapping of sp3d hybrid orbital of phosphorus and 3pz atomic orbital of chlorine. In this way total 5 PCl bonds are formed. ये सब आपने +1 में पढ़ा भी है. सो आप देखिएगा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया. इन द केस ऑफ PCl5, the hybridization of central phosphorus atom is sp3d. Out of the 5 sp3d hybrid orbital of phosphorus, 3 sp3d hybrid orbital will overlap with the 3pz atomic orbital of 3 chlorine atom to form 3 covalent bonds. These 3 PCl bonds lie in one plane and they are at an angle of 120 to each other. These PCl bonds are called equatorial bonds. पहले मैं equatorial दिखा रहा हूँ, ये P है, ये मैंने ऐसे दिखा दिया. ये तीनों bonds जो हैं, these are the equatorial bonds. While the 2 sp3d hybrid orbital of phosphorus overlap with the 3pz atomic orbital of 2 chlorine atom to form 2 PCl bonds which are perpendicular to the equatorial bonds. अब equatorial bonds है तो इनके perpendicular पे एक बॉन्ड ये आ गया ऊपर की तरफ में, एक बॉन्ड ये आ गया नीचे की तरफ में, ये दोनों. सो ये पर 90 डिग्री के एंगल पे हैं. One bond is lying above the plane and second is lying below the plane, and these are called PCl axial bonds. आप यहां देखेंगे these PCl bonds are called axial bonds, जो 90 डिग्री पे हैं. The geometry of PCl5 is trigonal bipyramidal. In the case of PCl5, there is one important question. 1 minute. In the case of PCl5, there are 2 type of bonds. PCl axial bonds, PCl equatorial bonds. So यहाँ क्वेश्चन क्या है? There is one important question. In the case of PCl5, the PCl axial bonds are longer than PCl equatorial bonds. कि axial bonds जो हैं वो equatorial के मुकाबले में लंबे क्यों हैं?
अब आपने प्लस में पढ़ा है देयर आर 3 टाइप ऑफ रिपल्शंस, वन इज लोन पेयर रिपल्शन, सेकेंड होती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, थर्ड होती है बॉन्ड पेयर रिपल्शंस। अब आप यहाँ देख रहे हैं इन द केस ऑफ PCl5 देयर आर टोटल 5 PCl बॉन्ड्स, उनमें से 3 PCl बॉन्ड्स एक टाइप के हैं, 2 PCl बॉन्ड्स एक टाइप के हैं। उन 3 PCl बॉन्ड्स में 3 बॉन्ड पेयर यूज हुए हैं, ऐसे ही 2 PCl बॉन्ड्स में 2 बॉन्ड पेयर यूज हुए हैं। सो होगा क्या यहाँ पर, जब 3 PCl इक्विटोरियल बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इक्विटोरियल बॉन्ड्स, दे विल रिपेल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एक्सियल बॉन्ड एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एक्सियल बॉन्ड्स विल रिपेल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इक्विटोरियल बॉन्ड्स। सो द रिपल्शन फेस्ड बाय एक्सियल बॉन्ड्स इज मोर। सो आप देखेंगे इन द केस ऑफ PCl5 द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 3 PCl इक्विटोरियल बॉन्ड्स repel the electrons of 2 PCl axial bonds and electrons of 2 PCl axial bonds will repel the electrons of 3 PCl equitorial bonds. But the repulsion is more in first case. First case में repulsion ज़्यादा होगी जब equitorial bonds के इलेक्ट्रॉन axial को repel करेंगे। तो उससे होगा क्या, जो ये क्लोरीन एटम हैं axial bonds वाले, they will move away from the central phosphorus atom, यानी कि इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, P और Cl के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा एक्सियल बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स पर। एक्सियल बॉन्ड्स वाले जो हैं PCl एक्सियल बॉन्ड्स के फास्फोरस और क्लोरीन में, और ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी एंड देयरफॉर PCl एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन PCl इक्विटोरियल बॉन्ड्स। ये कहेंगे PCl एक्सियल बॉन्ड्स की जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्विटोरियल से ज़्यादा हो जाएगी। और कितनी है हमारे पास PCl एक्सियल बॉन्ड्स हैं, इनकी बॉन्ड लेंथ है 219 पिकोमीटर और इक्विटोरियल बॉन्ड्स है इनकी बॉन्ड लेंथ है 204 पिकोमीटर। नेक्स्ट टाइम हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ पेंटालाइड्स की प्रॉपर्टीज। दीज पेंटालाइड्स आर मोर कोवलेंट देन ट्राइहेलाइड्स। पेंटालाइड ट्राइहेलाइड से ज़्यादा कोवलेंट है क्योंकि क्लियर है ट्राइहेलाइड्स में 3 बॉन्ड्स है, पेंटालाइड में 5 बॉन्ड्स हैं। नेक्स्ट दीज पेंटालाइड्स आर थर्मली लेस स्टेबल देन कॉरस्पॉन्डिंग हैलाइड्स, उनसे लेस स्टेबल है। ऑल द पेंटालाइड एक्ट एज लेविस एसिड्स। ट्राइहेलाइड्स में सिर्फ फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी के ट्राइहेलाइड्स लेविस एसिड के रूप में थे, लेकिन यहाँ सभी हैं। ऑल द पेंटालाइड एक्ट एज लेविस एसिड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी एटॉमिक ऑर्बिटल, और लेविस एसिड है सो दे कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्स। नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी विद मेटल। अब इस ग्रुप के एलिमेंट जिस समय मेटल साथ मिलेंगे तब क्या बनाएंगे। ऑल द ग्रुप 15 एलिमेंट्स रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म बाइनरी कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल यदि नाइट्रोजन जुड़ेगा तो वो बनाएंगे नाइट्राइड्स, नाइट्राइड्स में N का ऑक्सीडेशन -3 होगा। आर्सेनिक जुड़ेगा आर्सेनाइड AS-3। फास्फोरस जुड़ेगा फॉस्फाइड, फॉस्फाइड में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन पर क्या होगा -3। इस तरह से हमारे पास ग्रुप 15 के एलिमेंट जिसमें मेटल साथ रिएक्शन करेंगे देन दे विल फॉर्म बाइनरी कंपाउंड्स। जैसे नाइट्रोजन साथ मिला लिथियम नाइट्राइड Li3n, मैग्नीशियम साथ मिला Mg3n2, सोडियम ने आर्सेनिक से मिला Na3S, तो दिस इज सोडियम आर्सेनाइड। सो दीज आर द बाइनरी कंपाउंड्स। और बाइनरी कंपाउंड्स होते क्या हैं, द कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ 2 एलिमेंट्स। नेक्स्ट इज अनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का अनोमलस बिहेवियर। अनोमलस बिहेवियर का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो इस ग्रुप में पाए जाने वाले बाकी सभी एलिमेंट से डिफरेंट हैं। नाइट्रोजन द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस फैमिली इज अनोमलस इन बिहेवियर। इट डिफर्स इन मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द अदर एलिमेंट। इट इज ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज, फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल साइज है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनेशन एंथैल्पी एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी एटॉमिक ऑर्बिटल इन द वैलेंस शेल। कि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल यानी कि आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास डी एटॉमिक ऑर्बिटल एब्सेंट है। इसी वजह से द कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन डज नॉट एक्सीड बियॉन्ड 4 एंड दिस इज ऑल अबाउट anomalous behavior of nitrogen and chemical properties of group 15 elements. Hope you learned a lot from my video. If you like my video, then you can share my video and you can subscribe my channel Ultimate Science by Satish Kalra. Thanks a lot.